So hello guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Muhammad Talha Salim. Okay, and inshallah I'll be your facilitator for business writing and comprehension skills, BWCS course, right? So this is about writing skills, business related writing. Which topics are included in it? We'll discuss about it. Okay, my introduction is not required, right? So personally, I've done MA English and MS Applied Linguistics, and I've been in the field for about 15 years now, right? So currently, I'm a principal in the morning, and afternoon I'm teaching at ARTT Business School, right? So I'll be teaching you, inshallah, this writing skills course here, and we'll meet you in other PPE presentation and personal effectiveness course as well, right? So let's talk about the areas which we are going to cover in this course. One is, for example, essay writing. Okay, this is compulsory segment of your ICAPS PRC1 BWCS course. Okay, this is for 30 marks. Okay, it's very important. 30 marks essay writing, usually argumentative writing. Okay, then you have another part where you write letters, memorandum, report, emails, and business related writing. Okay, for 20 marks you are going to have letters or emails or memo or report. Okay, so letters, emails, memo, and report. So the first part is business essay writing, the other part is business writing. Okay, then we have vocabulary, which we have to cover, and we have to go through, memorize, learn, understand, make a vocabulary bank in our mind. We should be able to know synonyms, antonyms, okay, and for example, parts of speech, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, etc., and similes, metaphors, and idioms. Okay, I'll show you the book as well. We'll see the study text which is provided by ICAP. We'll go through that as well. Okay, so one is essay writing, the other is business writing, where we have letters, emails, memorandum, reports. Then we have vocabulary segment, and then we have reading comprehension part, where we have to read and respond to the question, where we have speed reading. Okay, and where we have summary writing or précis writing. Okay, so the reading part, vocabulary part, and business writing and essay writing. I'll show you the sample paper as well. Speed reading. For example, you have 5 minutes time and you have to go through the text and then you have to respond to the questions. So it means they are going to see and check your understanding level, reading capability, capacity of comprehending the text and responding to the questions. Okay, so these are the major chunks. These topics are covered in the book. You are seeing the book now. Yeah, we are coming to that as well. Chapter number 1 is about writing process, in which we are going to learn about the basics, the brainstorming strategies, starting to write, planning to write. Then we have business messages and correspondence, the second unit you are seeing here. Okay,
in which you have letters, reports, memorandum, communicating in a business setting, business situation. Then we have unit number 3, it's about business reports, just the same. Then we have vocabulary and phrases, unit number 4. Argumentative writing is again essay writing connected with chapter number 1. Okay, chapter number 1 is about basics, planning for writing, and unit number 5 is argumentative writing, the essay writing. Okay, and the last part is reading comprehension. Right? Clear? Any problem, any confusion? No problem, right? It's very simple, inshallah. We just need to have a good command over language. One thing I require from my students is they should find out some half an hour at least every day, and they should read 1, 2, 3 articles every day. While doing other subjects, while practicing all accounts and mathematics and other subjects, you should spend some time on reading. 1 article every day, 2 articles maximum. I mean, ideally, you should have 3, 4 articles every day, and you should start writing at least 1 paragraph. Okay? So with writing and reading, inshallah, you will be able to gain vocabulary, you will have better structures, you will have better style of writing, and ICAP wants you to be, should not be AI dependent, right? So you should be independent writer, independent speaker, and independent individual, okay, being a chartered accountant. So, for example, we have question here on the screen you are seeing. It's about essay writing. I mean, it's about business letter writing. Okay, the scenario is given. Those who have done O levels, they must have done directed writing, in which you have the scenario given. It's just the same, you have the direction given, and you have to follow it. As a manager customer relations of MH, write a letter responding to the inquiry. So I hope, I know you are unable to read it, so I'm reading it to you. As manager customer relations of MH, write a letter responding to the inquiry. So you have the inquiry, you have received the inquiry, the case is there, you will understand it and you will respond. How many marks? 20 marks. Hello. Okay, so it's for 20 marks. What is this? This is letter. So it can be letter, it can be report, it can be memorandum. Then you have reading passage. It's a reading comprehension. The text is given, maybe about 300 to 400 words, and you have MCQ based questions given. This template is also given by ICAP. Okay, nothing is from my side. This is also from ICAP. The sample is given, and you are seeing it here. You have to respond to different MCQ based questions. Okay, then you have, for example, the text is given. You are reading the text and finding out 8 important key points. Okay, you are finding out 8 important key points, and you have to also suggest the title. Once you will find out these key points, using the same key points, you have to write a proper précis of the text. Okay, so once you will identify the key points, writing becomes easy, and you will be able to write a proper summary. Okay, for business writing, for essay writing, you have a planning stage where you have to plan, and once you will plan, you will have to write the problem statement. You have to identify your causes and the effects, for example, you need to have a main idea and the supporting techniques. We'll discuss about it, don't worry. These are the 2 techniques which are very popular and very common, and you have to practice, and it's going to be tested in the exam. One is called fishbone diagram. Inshallah, we'll practice it, and with the first one at the top. Okay, this is called fishbone, and the other one is affinity diagram. We'll learn about it. Okay, and with this, inshallah, you will be able to find out some key points, and using those key points which you will select here, you will actually write your essay. Okay, the same way you have for 20 marks, you have the vocabulary section, where you are going to respond to the questions related to, for example, synonyms, for example, antonyms, for example, identifying parts of speech, for example, writing up or identifying meaning. It is just like you have to just match. Okay, if you know the meaning, you will be able to match. Okay, so this is how.
Right, so the paper is there in front of you. I hope it's clear. You have essay, you have to practice essay writing, you have to practice letters or business related writing, and then you have to work on your vocabulary, then you have to work on reading. So this is the paper. Inshallah, practice makes a perfect. If your English is not good, you need to practice more. If your English is already good and you are already writing content writing, or you are already writing essays and reading good articles, inshallah, it's not going to be a big deal. We just need practice according to the given suggestions in the light of the teacher's guidance. Okay, so then the things are very easy. I usually say the paper of ICAP's English business writing or PSU1 is little technical. Okay, if your English is very good but you don't know the format, you might stuck. But if you know the format and somewhere there is weakness, still you can inshallah manage to clear the paper. So one thing which I am requesting is to start practicing your writing. Okay, reading and writing. Done? You need to see the book now. Have you seen the book before? Okay, so we are just having a look here. This is just the table of content. Online students, they can also ask questions. The paper is of 100 marks, as I told you, and inshallah you will be able to do it accordingly. And with practice, inshallah, you will be able to do it in an exam situation. Chapter number 1, as I told you, it's about the basics. Okay, where we are going to have basic introduction and we are going to learn about basics of writing, and we'll start actually this writing skill from today. Okay, these are all features of language, for example, style, okay, vocabulary, choice of words, medium, okay, identifying our audience, who is going to be the audience, okay, different types of writings are there. How do we generate ideas, brainstorming strategies, mind mapping, etc., etc. Okay, after every chapter, after every unit, there is some practice content available. You can practice. This is the format of letter. Format of letter is very important here for our ICAP examination, because there are marks for the format as well. If you have, for example, if you miss the content part of the letter, but still if you have written the format, you're going to have marks. It means format is very important. You have to follow it, and that's why it is mentioned what to write where. Okay, so and there are types of letters: persuasive letter, bad news message, bad news letter, okay, good news or letter of inquiry, etc., etc. So inshallah we'll practice it as well. Okay, then we have unit number 4. Unit number 3 is about reports, and then we have a vocabulary segment. Unit number 4, chapter 4 is all about vocabulary. So to improve the language, to learn a language, it's very important to know, to have a command over vocabulary. Okay, and at least you should have the pool of 5,000 words of English language if you want to communicate English effectively. And you are going to have good vocabulary list here. And by the way, those who have done in English medium schooling, they already have the knowledge of this vocabulary which we are seeing here. मालूम है ना कि सारे वर्ड तो बहुत आसान है. अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एसोसिएटेड, बोरिंग, बोर्ड, ब्रेवरी. क्या ख्याल है? आसान है. तो बस ये चीज़ें हैं. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या एडवर्ब है और क्या एडजेक्टिव है और क्या नाउन है. ठीक है? Hello, understood? So this is how we have to go through the vocabulary. और vocabulary का याद करने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं है. इसको बस go through करते रहो. Since it is a so long list, so you just have to go through it again and again. जितना ज़्यादा go through होगा, जितना ज़्यादा सामने से नज़रों से गुजरेगा, और जितनी ज़्यादा तुम reading करोगे, inshallah you are going to have good command over it. For example, words are there, synonyms are there. The word shortage is scarcity, show, reveal, shut, close. Okay, sight, seen, sign, signal, signal, sign. Okay, significant, meaningful, silly, foolish, silly, stupid, sincere, honest, and so on. So it's just a list. You can go through it and again go through it and then again see it. With letters you may cover, for example, one day you may cover A and then B and C and D and so on. So this is the vocabulary list. You have to inshallah do it. Okay, so what will I be doing? I'll be guiding you
about writing essays, about formats of letters and styles of writing of letters and emails and memorandums. And with this guidance you have to practice, and with practice you have to show it to me and I'll give the feedback. चाहे वो face to face होगा तो भी feedback मिलेगा, और चाहे वो online होगा तो WhatsApp के through भी you will get feedback. और जितनी ज़्यादा अच्छी फीडबैक हो, जितना आपने प्रैक्टिस ज़्यादा किया हो, उतना देयर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग दिस पेपर. ओके, ये सारा वोकेबुलरी का यूनिट है. तो ये वोकेबुलरी हम ऐसे क्लास में नहीं करेंगे, कुछ कुछ मैं आपको कभी कभी गाइड कर दूंगा, बट यू नीड टू स्टार्ट अबाउट वोकेबुलरी योरसेल्फ. ठीक है, तो वोकेबुलरी को आपने शुरू कर देना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस. डन? कोई घबराहट, कोई टेंशन? आसान है. ये देखो इस तरह से जब हम पहले ज़माने में राइटिंग करते थे इन आर इंटरमीडिएट, व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू होल्ड अ पेन एंड वी यूज्ड टू स्टार्ट एंड वी यूज्ड टू राइट एंड देन राइट एंड देन राइट एंड टेक अ पॉज, थिंक अगेन एंड देन राइट एंड देन टेक अ पॉज, देन थिंक एंड देन राइट. नाउ द सिस्टम इज चेंज एंड देन वंस वी हैव रिटन, हम समझते थे कि हमने लिख लिया. असल जो फॉर्मेट होता है राइटिंग का क्या होता है कि आपने पहले प्लान करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेज इज प्लानिंग. मैं वापस जाऊंगा बुक पर, मैं बीच में से आया हूं, मुझे पता है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग स्टेज. वंस यू हैव प्लान, नक्शा बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, डिज़ाइन करवा अप्रूव करवा लिया, देन उस पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो ये डायरेक्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट हम जो है ना सामान लाए और बंगला बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं. सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू हैव प्लानिंग. वंस वी विल प्लान, जब हमारा प्लान हो जाएगा तो फिर हम राइटिंग करेंगे. वंस वी हैव द प्लान, द राइटिंग विल बी वेरी ईजी. उसमें ये नहीं होगा कि तुम लिखो एंड देन यू टेक अ पॉज एंड थिंक. So you have already planned, you know what am I going to write in the introduction, what is coming in the body paragraph, what is going to be my first sentence, what is coming in the support, where I'm writing reason, where I'm giving example, and how am I connecting different ideas. समझ रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, बोर हो तो बता देना. ठीक है, तो नंबर वन इज प्लानिंग. सो यू हैव टू डिज़ाइन, यू हैव टू डेकोरेट, कि मैंने किस तरह से अपने आर्टिकल को डेकोरेट करना है. और उसके बाद जो है ना एक्चुअल राइटिंग होती है. Once you have planned, then you have to write. फिर हम लिखेंगे and we write and write and write using all those ideas which we have found out, which we have linked and written before in the pre-writing stage, in the planning stage, and then we have the writing. अच्छा, अब हम समझते ये थे कि हमने लिख लिया तो काम हो गया. नहीं, अभी काम नहीं हुआ. लिखने के बाद क्या चीज़ है? रिव्यूइंग. रिव्यू और रिवाइज द कंटेंट, और यू कैन से एडिट द कंटेंट. तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ रिवीजन का, क्योंकि अभी जब हम स्क्रीन पर देख रहे थे तो ये देखो ये क्या है. आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? क्लियर है? ये कुछ चीज़ें कटी हुई नज़र आ रही हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज एडिटिंग. कि आपने एक चीज़ लिखी है बट देन यू रिव्यू एंड रिवाइज. तुम खुद लिखोगे और खुद अपनी ही लैंग्वेज को जब तुम रिवाइज करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट मिस्टेक्स एंड यू कैन इम्प्रूव. मुस्फिरा MCQs हो भी सकते हैं उसके अंदर वोकैबुलरी वाले पार्ट में, बट अदरवाइज यू हैव ऐसे राइटिंग, यू हैव लेटर राइटिंग, ओके, एंड यू हैव समरी राइटिंग and identifying key points from the text. There you have only you have to write those key points which you identify in phrases or bullets, and your reading comprehension is based on MCQs, okay, and you have got 2 hours time, right? ओके, तो ये है कि आपने अपने कंटेंट को अब एडिट करना है, रिवाइज करना है फॉर द लैंग्वेज. और आपके पास ये एक अच्छा पॉइंट याद आ गया. फॉर योर लेटर यू हैव, फॉर योर एसे यू हैव ओनली 150 वर्ड्स स्पेस. अब 150 वर्ड्स से तुम ज़्यादा लिख नहीं सकते. एक वर्ड भी तुम ऊपर लिखना चाहोगे, वहाँ पर जो डैशबोर्ड पे जो स्पेस है वो आपको गुंजाइश नहीं देती, वो आपको लिखने नहीं देती. सो नाउ यू हैव टू मैनेज योर कंटेंट इन 150 वर्ड्स ओनली. ठीक है, तो यहाँ हमें प्रैक्टिस करनी होती है. ज़्यादा लिखना आसान है, शॉर्ट लिखना मुश्किल है. ज़्यादा बोलना आसान है, कम नपी तुली स्पेसिफिक बात करना मुश्किल होता है. सो विल इंशाल्लाह प्रैक्टिस, एंड विद प्रैक्टिस वी विल बी एबल टू राइट 150 वर्ड्स ऐसे, राइट? समझ गए? तो अब ये है कि इस तरह से हमारा राइटिंग का पार्ट है. वी हैव टू रीड डिफरेंट टेक्स्ट एंड देन आफ्टर रीडिंग वी हैव टू रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग हियर the text is given, we have to read this text
एंड कॉम्प्रीहेंड इट, अंडरस्टैंड इट, और इसमें से फिर एमसीक्यूज दिए होंगे और इसी तरह वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। वहाँ तो क्लिक करोगे, इट इज़ गोइंग टू बी कंप्यूटर बेस्ड, आपको मालूम है राइट। वहाँ तो क्लिक करोगे, बट यहाँ पर फिलहाल वी कैन प्रैक्टिस, जो भी रिस्पॉन्स हो हम उसको मार्क कर सकते हैं राइट। तो इस तरह के प्रैक्टिस मटेरियल इज ऑल्सो गिवन इन दिस बुक, एंड देयर इज अनदर स्टडी, देयर इज अनदर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल, जो कि ICAP का क्वेश्चन बैंक है, उसमें भी बहुत सारा मटेरियल हमारा प्रैक्टिस के लिए BWCS का मौजूद है। तो असल जो हमारे CA के अंदर बच्चे ने करना है वो अपनी शेड्यूलिंग करनी है, अपनी मैनेजमेंट करनी है कि चीज़ों को मैंने किस तरह करना है और किस तरह। पहले ज़माने में तो आपकी मम्मा और बाबा आपके साथ होते थे ना, और आपके पीछे पीछे होते थे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब तुम्हें कोई नहीं कहेगा, शायद कह भी दें, लेकिन स्टिल नाउ यू हैव टू मैनेज। ठीक है, तुम्हारा एक पैशन होना चाहिए और तुम्हारी एक प्लानिंग हो, और उसमें तुम शेड्यूल करो कि तुमने किसको कहाँ किस प्रायोरिटी में रखना है। एंड देयर यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग, and you have to practice and then practice and then practice, and you have to send the material to the teacher and get the feedback। ठीक है, इसी तरीके से जब बुक ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी कुछ वर्ड्स गिवन हैं, वोकेबुलरी का यूनिट नंबर 4 भी है, और उसके बाद कुछ ऑक्सफोर्ड के 3000 वर्ड लिस्ट इज गिवन। अगेन उसको भी तुम्हें देखना है, पढ़ना है, याद करना है, गो थ्रू करना है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कब नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह। ठीक है, तो ये कॉमन लिस्ट है ऑक्सफोर्ड की। ये जो लिस्ट है इज़ वेरी पॉपुलर, एंड दे आर सम एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, दे आर वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन गूगल विच प्रोवाइड यू असिस्टेंस इन इम्प्रूविंग इट। तो ऐसा है कि ब्लैंक स्पेसेस दी होती हैं और आप उसको प्रैक्टिस करते हो, सोचते हो कि इस पर क्या वर्ड आएगा। सो प्रैक्टिस मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑक्सफोर्ड 3000 वर्ड लिस्ट राइट। सो दिस content is also available, for example, in the end, ending, enemy, energy, engage, okay, engaged, error, escape, etc. तो इस तरह से वर्ड्स हैं ABC से लेकर Z तक। सो वी हैव टू गो थ्रू देम एज वेल। ये भी हमारा वोकेबुलरी का सेगमेंट होता है। इसी तरीके से देयर इज स्पेसिफिक ICAP वोकेबुलरी गिवन। इसको भी हमें याद करना होता है और इसके मीनिंग और सिनोनिम्स भी हमें याद करने होते हैं। ठीक है, अबेट, अबेंस, ऑब्जेक्ट, एक्कोलेड, दिस इज ऑल्सो लिस्ट ऑफ अबाउट 530 वर्ड्स और सो। ठीक है, परेशान तो नहीं हूँ। हमारा जो ICAP का कोर्स होता है इसके अंदर आपका इंटेलिजेंस भी यूज़ होती है, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड भी यूज़ होता है, एनालिटिकल स्किल भी यूज़ होती है, आपकी जो मेमोराइजेशन है, जो रट्टा है, वो भी यहाँ आ जाता है। ठीक है, सो कई सारी मुख्तलिफ टाइप की जो आपकी स्किल्स हैं, दे आर गोइंग टू बी यूज्ड एंड यू हैव टू अप्लाई देम ऑल। सही है, सही है भाई, ठीक है। हेलो, उसके बाद वी हैव गॉट गुड लिस्ट ऑफ ईडियम। ईडियम भी बहुत मज़े के होते हैं, आसान होते हैं। देखो ये अगर हमें आ जाएंगे ना, ये सारी चीज़ को अगर हमने एक पूल पिक कर लिया तो फिर क्या होता है, थिंग्स बिकम ईजी। लैंग्वेज हमारे हाथ में होती है, लैंग्वेज हमारे दिमाग में होती है, एंड थिंग्स आर वेरी ईजी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड एंड इवन यूज इट। आपका जो ऐसे राइटिंग है उसके अंदर ICAP की ख्वाहिश होती है कि आप कुछ ईडियम्स का इस्तेमाल करो। सो इफ़ यू विल इंशाल्लाह लर्न देम, यू विल यूज ईडियम्स इफेक्टिवली इन योर ऐसे राइटिंग एज वेल। ठीक है, जो हमारी चेकलिस्ट होती है, जो एग्जामिनर चीज़ें देख रहा होता है उसके अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस को भी देख रहा होता है, जो बहुत आसान है और बहुत सारे कॉमन सेंस के होते हैं, लॉजिकल होते हैं। अबव ऑल, मोस्ट सिग्निफिकेंटली, अबव बोर्ड, एवरीथिंग इज एज इट सीम्स, Achilles heel, a weakness। गो थ्रू करें, ये क्या कह रहे हैं? नो नो नो, मुस्फिरा, नो रफ वर्क। जो भी चीज़ें होंगी, मैं तो अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो कि बहुत अहम है, करनी होती है राइटिंग से पहले एट द प्लानिंग स्टेज, लेकिन आप कहाँ करोगे? दिमाग में करोगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल। ठीक है, तो वो बहुत सारा काम तुम्हारे दिमाग पे तुम्हें बोझ डालना है। ओके, सो एसिड टेस्ट, अ श्योर टेस्ट, अक्रॉस द बोर्ड, अप्लाइंग टू ऑल। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजरी, मेकिंग अ बैड सिचुएशन वर्स। कुछ तुमने इसमें से पढ़ी भी होंगी मैट्रिक इंटरमीडिएट में। आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरे दिल की बात। ठीक है, जो मैंने कहा वही वाली बात। ऑल एंड सन्ड्री, टू इंक्लूड एवरीवन, ऑल ईयर्स, पेइंग क्लोज अटेंशन टू, ऑल इन ऑल, एवरीथिंग बीइंग टेकन इनटू। तो ये तुम याद कर लोगे ना इंशाल्लाह। सही है, तो ये 1000 प्लस माइनस है। ठीक है, ये इतने सारे हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ने के लिए आए हैं, तो वी कैन डू इट। इतने बड़ा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है,
तो ये वोकेबलरी वाला सेगमेंट है और इस तरह से। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि आपने करनी है। क्या क्या? हेलो, क्या क्या करना है? यस, ऐसे राइटिंग है और बिजनेस राइटिंग है, इन विच वी हैव लेटर्स, ईमेल्स, मेमोरेंडम, और उसके अलावा हमें वोकेबलरी वाला पार्ट है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम आज पहला लेक्चर शुरू करें। अभी तक तो बस बेसिक बातें थी, इंट्रोडक्शन था, चीज़ें समझ में आ गई। अब हम ऐसे पर शुरू करते हैं बात। शुड वी स्टार्ट? अच्छा, अब देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, यू यूज टू होल्ड अ पेन एंड यू यूज टू सिलेक्ट द टॉपिक एंड यू यूज टू स्टार्ट राइटिंग। नाउ द राइटिंग इज नॉट गोइंग टू बी स्टार्टेड दिस वे। ठीक है, एंड दिस सेगमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की सेगमेंट ऑफ 30 मार्क्स, जिसमें से 10 मार्क्स आर फॉर योर ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी, ओके, एंड 20 मार्क्स फॉर योर राइटिंग पार्ट। ओके, सो इट मीन्स राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ ये नहीं है कि आपने पेन पकड़ा और स्टार्ट राइटिंग, बल्कि हेलो, अच्छा, बल्कि अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्लान फर्स्ट। अब प्लानिंग का एक आम सा और सादा सा तरीका क्या होता है, घर में शादी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो प्लान करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को बुलाना है, कुछ रिश्तेदारों को बुलाना है, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक लिस्ट, या हम उसको लिस्टिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। मम्मा ने आपसे कोई सौदा मंगवाया, धनिया पुदीना कॉमन है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, लिस्ट बना देंगे। पुराने ज़माने में एक पर्ची देते थे, आज के ज़माने में क्या देते हैं, व्हाट्सएप पे एक लिस्ट भेज देते हैं, भाई ये चीज़ें वापसी पर लेकर आइएगा। ठीक है, सीए तो कर रहे हो, लेकिन आलू प्याज तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड लिस्टिंग। दिस इज वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। अब एग्जाम में ये लिस्टिंग मैं कहाँ करूँगा भाई, ऑनलाइन वाले आप भी चैट पे जारी रखें। एग्जाम सिचुएशन में ये लिस्टिंग कहाँ करूँगा, दिमाग में ही करूँगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग विल बी डन इन द ब्रेन ओनली। ठीक है, लेकिन ये डेटा होगा ही तो हम काम कर सकेंगे, और हम यहाँ पर विदाउट डेटा नहीं। बिकॉज अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा सर, अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया और अगर मैंने प्लान करके लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज द प्लान। अगर मैं फिर एक सोसाइटी की तुम्हें मिसाल दूं, वन प्लान सोसाइटी लुक्स गुड, अट्रैक्टिव, उसमें एक गार्डन की स्पेस होती है, पार्क की, एक मस्जिद की स्पेस होगी एक सोसाइटी के अंदर, एक अच्छे अच्छे तमीज़ से घर बने हुए होंगे, और एक रूट होगा, एक पाथ होगा, साफ़ सुथरी रोड होगी, साइड पे फुटपाथ होगा, ड्रेन का सिस्टम होगा, बारिश होगी तो पानी के जाने के तरीके होंगे। ठीक है, और एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर कोई यानी कि एक सोसाइटी है, बल्कि सोसाइटी का एक मोहल्ला है जो कि अनप्लान्ड सोसाइटी टाइप का है, नॉट लीज्ड। अब क्या है कि अचानक से जा रहे हैं मुन्ना भाई और गली बंद हो गई। अब वो कह रहा मैं कहाँ जाऊँ, वो कह रहे इधर मुड़ो इधर मुड़ो। इसी तरह से घर सीक्वेंस में नहीं है, कोई बाहर निकला हुआ है, कोई अंदर है, तो ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। वो वाली सोसाइटी एक प्लान्ड सोसाइटी थी, अच्छी लग रही। इसी तरह से एक घर बना हुआ है, ठीक है, एक घर है, उसमें एंटर होते हैं तो एक अच्छा सा जो है ना कार पोर्च है, उसके बाद जो है वो ड्राइंग रूम का एरिया है, और फिर अंदर कमरे बने हुए। एक और है, घर में एंटर हुए, पार्किंग है, इधर वॉशरूम बना हुआ है, ठीक है, इधर किचन बना हुआ है। तो अब ये कि ये अनप्लान्ड सा घर लग रहा है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज़ मस्ट। अब आप किसी बड़े राइटर के बारे में सोचो तो दे डू नॉट राइट डायरेक्टली, दे थिंक, दे प्लान एंड देन दे राइट लॉजिकली। देखो जब प्लान होगा तो आर्टिकल विल बी लॉजिकल, कहाँ से स्टार्ट होना है, देन क्या मूवमेंट होगी, किधर को जाएंगे, वेयर टू ऐड एग्जाम्पल, वेयर टू राइट व्हाट, और फिर एंडिंग कैसे हो रही है, सारी चीज़ें पहले से प्लानिंग में आ जाएंगी। तो चीज़ें विल बी आसान एंड चीज़ें विल बी लाइंड अप एंड थिंग्स विल बी कनेक्टेड, योर सेंटेंसेस विल बी लिंक्ड। अगर तुमने लिंक नहीं किया तो इट विल लुक एज इफ दे आर स्टैग्नेंट सेंटेंसेस, ऐसा लगेगा कि बस ऐसे ही जुमले हैं, उनको फेंका हुआ है। ठीक है, तो हम भी कभी आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो कोई आर्टिकल अच्छा लगता है एंड वी कीप ऑन रीडिंग, एंड समटाइम्स वी डोंट लाइक द आर्टिकल, उस पर कुछ मज़ा ही नहीं आता लैंग्वेज के अतबार से, स्ट्रक्चर के अतबार से, और कभी समझ नहीं आता कि वेयर डू वी हैव टू गो। सही है, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू प्लान फर्स्ट। सो द फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग, और प्लानिंग का जो मैंने सबसे आसान तरीका बताया वो क्या है, कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है, अब अगर तुम्हें मैं कहूँ कि थिंक अबाउट ए स्मार्टफोन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है, तो क्या जहन में आता है, स्मार्टफोन, आई एम मेकिंग लिस्ट, स्मार्टफोन, कम्युनिकेशन, तुम लोगों को शायद नहीं आता, सोचो,
Online wale can also participate. Information, connected to the world, portable, G. All features of a cell phone, different features and benefits, for example, calculator, torch, etc., etc. Right? Contact list और and so on. ठीक है. अगर मैं कहूँ kindness of mother, let's make a list. एक आपको आर्टिकल लिखना है on mother's kindness, तो क्या कहेंगे? कोई आइडिया आता है? Care, love, humble towards her children, or compassionate, G, responsible, and so on. ठीक है. इसी तरह से और क्या टॉपिक हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जी, यू आर राइटिंग अबाउट कराची. कराची के बारे में तो बता सकते हो यार, बहुत आसान. ठीक है. प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी कराची, या एक चलो कराची, सिटी ऑफ लाइट्स. अच्छा, पॉजिटिव्स अगर हम लिखें तो वी हैव फूड. ओके, व्हाट एल्स? कराची ट्रैफिक. व्हाट? अवाम. अवाम तो हर जगह ही होते हैं. और कराची की खासियत रॉबरी. ओके. और इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत बड़े शहरों में से एक शहर है ना. हेल्थ केयर, पॉपुलेशन, and it's a melting pot as well. Melting pot बोले तो here we have people from the whole country, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग. ठीक है. ठीक है. तो this is how we can collect ideas. Once we have collected idea, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना है. I have to write an article about mobile phone. So now I will decide which idea to write first, what to write next, and what to write next to next. सही है. अब मदर के बारे में लिख रहा हूँ तो पहले मैं केयर के बारे में लिखूँ, या लव के बारे में लिखूँ, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखूँ. ठीक है. आई एम राइटिंग अबाउट कराची, तो पहले फूड के बारे में लिखूँ, या ट्रैफिक के बारे में लिखूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखूँ, या सिटी ऑफ लाइट्स लिखूँ. ठीक है. तो हम ये भी कर सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, नीड इम्प्रूवमेंट. तो वी नीड टू डिसाइड एंड डिज़ाइन इट. तो ये सारा काम हम कहाँ करते हैं? प्लानिंग के टाइम करते हैं. सही है. इसी तरह से एक चीज़ होती है, दिस इज स्टेप नंबर 1, मेकिंग अ लिस्ट. तो आपने ये वाली लिस्ट कहाँ बनानी है? इन द ब्रेन. सेकेंड लिस्ट होती है, दैट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड आउटलाइन. दूसरी चीज क्या है? वी हैव टू मेक एन आउटलाइन. आउटलाइन का स्ट्रक्चर याद करें. दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज सब आइडिया 1, सब आइडिया 2 एंड सब आइडिया 3. दिस इज कॉल्ड टॉपिक आइडिया, and this is called supporting idea, this is supporting idea 2, and this is supporting idea. Okay, so this is going to be the structure of one block of outline. So this is the complete body paragraph ka structure. It's the complete structure of a body paragraph. So in one body paragraph you have the topic idea or the topic sentence. यहाँ idea है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा? It will be topic sentence. Supporting idea 1 will become supporting sentence. Then you will add one example to that support. You will write supporting idea number 2, that is supporting sentence 2. Then you have another reason. Then you have support 3, and then you have another reason. So you are going to connect your ideas this way, and they all will be linked to one topic. If you are writing about mother's care and love. So the whole paragraph is about mother care and love.
तो इससे क्या होता है, द होल बॉडी पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट वन एरिया और वन थीम. तो इस तरह से यू डिवाइड योर पैराग्राफ इनटू डिफरेंट थीम्स. क्लियर? ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन भी हमें याद होना चाहिए. याद हो गया. वन, वी हैव द मेन आइडिया and we have the supporting ideas. This is one block. If you are writing one paragraph, body paragraph, this is one block. If you have to write two body paragraphs, there is another block. Okay, again topic sentence, topic idea, supporting idea 1, supporting idea 2 and supporting idea 3. Okay, and here you have the conclusion and here you have introduction. ऐसे ही ना. तो अब एग्जाम में मैं क्या करूं, इंट्रोडक्शन मेरा कितने वर्ड्स का हो, 30 वर्ड्स. बॉडी 1 फॉर एग्जाम्पल 50 वर्ड्स, 50 to 60 वर्ड. अनदर बॉडी पैराग्राफ 50 to 60 वर्ड्स. कितने हो गए, 130. कंक्लूजन ऑफ 20 वर्ड्स. ठीक है. एक और तरीका क्या हो सकता है कि इफ वी राइट ओनली वन बॉडी पैराग्राफ, देन वी हैव इंट्रो ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ, for example 30 words, then you have the body paragraph, only one body paragraph of about 100 words, and you have the conclusion of 20 words. So inshallah with practice you will be able to write one paragraph. Musfira depend करता है कि हम कितना बना रहे हैं. If we are writing two body paragraphs, we are going to have 50 words का एक paragraph, छोटा छोटा सा paragraph. And if we are writing only one paragraph, तो वो कितने का होगा, वो 100 words तक का हो जाएगा. वर्ड्स की समझो कि शॉर्टेज है, स्पेसिंग हमारे पास कम अवेलेबल है, तो वी हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली कि कितने वर्ड्स हम जो है वो लिख सकते. ये आपकी मर्जी होगी जी बिल्कुल, कि आप दो बॉडी पैराग्राफ बना रहे हैं, लेकिन जब दो बॉडी पैराग्राफ बना रहे हैं तो यू शुड हैव कंटेंट फॉर दैट एज वेल. ठीक है, कि आपने क्या टॉपिक आइडिया होगा और उस पर सपोर्ट क्या क्या देनी है. बिल्कुल, अगर ऐसा है आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं किसी टॉपिक पर, तो यू कैन राइट वन पैराग्राफ फॉर एडवांटेजेस एंड दैट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ, and another paragraph about disadvantages, and in the conclusion you can write a neutral statement in which you can mention कि तुम इस साइड पर हो या उस साइड पर हो. हाँ, अगर if you are on one side, अगर तुम एक साइड पर हो तो definitely the whole body paragraph is about advantages. You are in favor of something, so you can write all favors, right? बट यूजुअली जब हम किसी की फेवर भी करते हैं ना, तो जहाँ हम फेवर की बात कर रहे होते हैं वहाँ कुछ कुछ अगेंस्ट भी बता देते हैं कि नेगेटिव चीज़ भी है. तो यूजुअली वो दोनों चीज़ें ही साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चल रही होती है. लाइन स्पेसिंग, जी बिल्कुल, लाइन स्पेसिंग का आपके पास स्पेस होगा, उसको आपने मैनेज करना है. ठीक है. कीबोर्ड. सो विद प्रैक्टिस इंशाल्लाह यू कैन राइट बेटर. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ. तंग तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही? चलें आगे. इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी नहीं हो रहा. वेरी नाइस, एक्सेलेंट. अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे. ठीक है. अब एक ऐसे में वी हैव इंट्रोडक्शन, and you have to write this introduction with two things. One is called hook or hook statement and the other is called thesis. अब ये thesis क्या होता है ये मैं अलग से बताऊंगा. फिलहाल I am just telling you about parts of the whole essay. You have hook
and you have thesis. Hook statement and thesis statement. ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया. आपने 2 जुमले भी लिख दिए, 30 वर्ड है ना, 2 जुमले या मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस एंड योर इंट्रोडक्शन इज रेडी. राइट, डन हो गया. नंबर 1 इज, say it with me, one is hook and the other is thesis. Introduction 2 चीजों से मिलके बनेगा. Number 1 hook and number 2 thesis. Number 1 hook and the other is thesis. ऑनलाइन वाले आप भी रिकॉल करें. इंट्रोडक्शन वी हैव गॉट hook statement and the thesis statement. अब hook क्या होता है, thesis क्या होता है, वो मैं अभी तफसील से बताता हूँ, लेकिन ये 2 चीजों से मिलकर इंट्रो बनेगा. एंड इन द बॉडी पैराग्राफ, जी मिस, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री. यहां पर जो बॉडी पैराग्राफ है, इधर मैं लिख देता हूं बॉडी पैरा. यू हैव द टॉपिक सेंटेंस. You have topic sentence, you have supporting sentence 1, supporting sentence 2, you have supporting sentence 3. इसी में related support के लिए you can have example, you can have reason, you can have solution, you can have any type of a sentence. तो बॉडी किन चीजों से बनेगा, टॉपिक आइडिया एंड 3 सपोर्टिंग आइडियाज, या टॉपिक सेंटेंस एंड 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस. समझ गए? तो दोबारा से रिकॉल करते हैं. इंट्रोडक्शन सर पहले वाले स्ट्रक्चर किसका था? आई थॉट दैट वाज फॉर एसे. पहले वाले बोले तो पहले तो मैंने आपको एसे राइटिंग से पहले की ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी बताई थी, जिसमें यू हैव टू कलेक्ट आइडियाज in a list form, and once you have the list you have to create the outline. तो ये brainstorming strategy before writing. समझ गए? so before writing उसको हम कह लें प्री राइटिंग भी कह सकते हैं. यानी ऐसे राइटिंग के अंदर एक हमारी स्टेज है which is called प्री राइटिंग स्टेज. फिर दूसरी स्टेज हो गई ड्यूरिंग राइटिंग, and the third stage is post writing. Sorry, pre writing हो गई brainstorming strategy, planning, data collection और ideas generation. अब तुम्हें अगर ग्रेवयार्ड के बारे में लिखना है, ग्रेवयार्ड बोले तो कब्रिस्तान. अब डेटा तो होता है कहीं ना कहीं सेव्ड होता है ना, लेकिन जब मैंने एक टर्म बोली और तुम्हें इस पर कुछ लिखना है, तुम्हें इस पर कुछ बोलना है, नाउ यू विल कलेक्ट द डेटा. एक विंडो विल ओपन एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग, ओ माय गॉड, घोस्ट्स, ओके, डार्कनेस, द डेथ, वो पे चीजें आना शुरू हो जाएंगी. जिस टॉपिक पर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड प्री राइटिंग स्टेज वेयर वी हैव टू प्लान. हमें ऑडियंस भी सोचना होता है. हु इज गोइंग टू बी द ऑडियंस ऑफ माई दिस आर्टिकल. मैं जो आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरा ऑडियंस कौन होगा? हु इज गोइंग टू रीड माई आर्टिकल. क्या मैं ये किसी मैगजीन में पब्लिश करवाऊंगा? क्या मैं ये किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करूंगा? क्या मैंने ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ वहाँ पर जाएगा? या मैंने फेसबुक का पेज बनाया हुआ वहाँ पर मेरा कोई कंटेंट जा रहा है? या फिर ये कि आईकैप का एग्जामिनर ही पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस भी हमारा सिनेरियो, कंटेंट स्टाइल चेंज होता है. देखो कल को तुम लेटर्स लिखोगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, यू विल हैव टू राइट लेटर, यू विल हैव टू राइट ईमेल, यू हैव टू राइट मेमोरेंडम. व्हाट्सएप मैसेज तो लिखते ही रहते सारे. अब देखो, अब्बा को मैसेज जाएगा, द स्टाइल इज डिफरेंट. दोस्त को मैसेज जाएगा, द स्टाइल इज डिफरेंट. किसी कस्टमर को मैसेज जाएगा, मैं चश्मे बेचता हूँ, सपोज करो, मैं बेचता नहीं, तुमको चश्मा खरीदने नहीं आ जाना, चश्मा बेचता हूँ, तो द स्टाइल इज गोइंग टू बी डिफरेंट. यही चीज़ है, आज तुम नए लोगों से मिले हो, द स्टाइल ऑफ टॉकिंग, वर्बल जबानी भी आप जनाब हो रही होती है. और 8 दिन के बाद दोस्त बन गए तो फिर तू दड़ा हो रही, अबे चल आज चाय पीते, ठीक है. सो द लैंग्वेज चेंजेस. द सेम वे you are professional, inshallah, you are going to use sophisticated language with your clients, with new clients. और जो old client हो गए उनके साथ भी style changes. जो पुराने client है जिसके साथ already बातचीत चल रही है, now you are writing an email, the style is different. ठीक है, वहां पर कहते हैं dear Mr. काशिफ, dear Mr. काशिफ हुसैन. अब तुम कह रहे हो for example dear काशिफ, क्या है कि वो उसके साथ जो है फॉर्मेलिटी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया, एंड यू हैव बिल्ट अ गुड रेपो.
तो ये हम लोग बिजनेस लेटर्स, ईमेल्स, मेमोरेंडम के अंदर भी ऐसा करते हैं, और यही चीज़ हमारे ऐसे के अंदर भी आएगी। देखो एक आर्टिकल लिखा गया है किसी जो है ना इंटरमीडिएट और बैचलर लेवल के लिए, द स्टाइल इज डिफरेंट। वन आर्टिकल इज रिटन फॉर डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एजुकेटेड पीपल, द स्टाइल इज डिफरेंट। ठीक है, तो एक चीज़ है कि मैं एआई के बारे में बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखों से और जिनको टेक्नोलॉजी और टेक से कनेक्शन है, दे विल अंडरस्टैंड एआई, तो मेरा लेवल थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन अगर मैं एआई के बारे में उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता, तो द लैंग्वेज, द टोन, द कंटेंट वो बिल्कुल जो है ना बेस से आएगा, जहाँ मैं उसको डेफिनेशन से चलाऊंगा। सही है। सो वी नीड टू प्लान, ये होता है प्री राइटिंग स्टेज। वी हैव टू प्री राइट, वी हैव टू प्लान फर्स्ट, एंड वंस वी हैव प्लान, नाउ वी हैव टू राइट। ये जो राइटिंग वाला पार्ट है उसका मैं बता रहा था कि आपके पास इंट्रो है, आपके पास बॉडी है। इंट्रो के अंदर दो चीज़ें याद कर लें, आज पहली क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इंट्रो के अंदर दो चीज़ें, नंबर वन इज हुक एंड द अदर इज थीसिस स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है हम इस पर बाद में बात करते हैं। वन इज हुक एंड द अदर इज थीसिस स्टेटमेंट। और बॉडी के अंदर वी हैव द टॉपिक सेंटेंस एंड वी हैव द सबवर्डिंग सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू दिस क्वेश्चन, ये आपने मैनेज करना है। 30 मिनट्स का टाइम है, समझ लें, और उसके अंदर आप प्लान करने हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह, विद प्रैक्टिस यू कैन मैनेज द होल पेपर, और मैं आपको बताऊंगा उसके भी तरीके कि आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है। सो इन द इंट्रोडक्शन वी हैव हुक एंड थीसिस, in the body paragraph we have got topic sentences and subordinate sentences. Okay, and if you are making two body paragraphs, that means we have topic sentence, three subordinate sentences, another topic sentence, and again three subordinate sentences. And the conclusion, we have the summary of the whole, summary of the whole article, उसको हम यूं भी कह सकते हैं repetition ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। हम थीसिस को डिफरेंट अल्फाज में लिख देते हैं तो भी क्या बन जाता है, कंक्लूजन या समरी बन जाती है। थीसिस कहाँ आ रहा था, इंट्रोडक्शन में। देखो इसकी भी एक मिसाल, जब हम कहीं मीटिंग करते हैं, जब हमारा कोई एजेंडा होता है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। जब हम मीटिंग एंड करते हैं तो क्या कहते हैं, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक। यही होता है ना कि हमने ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया और ये डिस्कस किया। So usually introduction and conclusion is linked. So in introduction we announce we are going to talk about this, 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 and the conclusion we say we have discussed this, this and this. ठीक है, समझ गए। तो thesis is linked to the conclusion and we write the summary statement in the conclusion. Summary के अलावा अगर तुम्हारे पास और space है, अगर word count available है एक जुमले का, तो तुम क्या लिख सकते हो, solution to the issue you have discussed, और recommendation, कोई recommendation हो सकती है। ठीक है, और कोई, लेकिन न्यू आइडिया नहीं आना चाहिए। नो न्यू आइडिया इन द इंट्रोडक्शन, आई मीन इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में नया आइडिया कोई नहीं आएगा। ऑल आइडियाज विल बी कमिंग फ्रॉम द होल बॉडी एंड द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है, नया आइडिया, नया तारुफ, नई बात हमने कंक्लूजन में नहीं करनी। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द होल आर्टिकल। It can be a solution, it can be a recommendation, it can be any summary related or any idea which is linked to the body paragraph. Repeat the thesis statement in different words, in the different style. ठीक है जी। अब मैं अगर इंडिविजुअल से पूछूं तो ये स्ट्रक्चर हमें याद हो गया, तो ऐसे का स्ट्रक्चर आप बताएं जी। इंट्रो के अंदर के पार्ट्स बताएं। राइट, एंड इन द बॉडी में जो है मेन आइडिया होगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड दे विल बी लिंक्ड टू द टॉपिक ऑन विच वी आर राइटिंग। ओके, एंड इन द कंक्लूजन, वेरी नाइस, राइट, एंड वी कैन यूजुअली रीराइट द थीसिस स्टेटमेंट। सही है जी, आप बता दें जी फॉर्मेट। वेरी नाइस, एक्सेलेंट, वेरी नाइस जी। मैडम आप बता दें। इंट्रो में सबसे पहले स्टेटमेंट होगी, फिर थीसिस स्टेटमेंट होगी, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में हमारे पास एक भी हो सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ जितने भी चाहे बना सकते हैं।
एंड बॉडी पार्ट में हमारे पास सबसे पहले मेन आइडिया होता है एंड देन उसके बाद 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं फॉर दैट आइडिया, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन में हम उसी आइडिया को we repeat the thesis statement in different words or we write the summary. ठीक है मैडम, is it clear everyone? जी आप भी बता दो। राइट राइट राइट, एक्सेलेंट, वेरी नाइस जी। हाँ उस पर तो हमने बात ही नहीं की है अभी, तो सिर्फ हमने इनको टर्म्स बताई हैं। इंट्रोडक्शन में हुक आ रहा है और थीसिस आ रहा है, अभी हम उसमें मजीद बात करते हैं। और बॉडी में वी हैव टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्ट एंड वी हैव द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज द समरी, समरी रिपीटिशन ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। और एक हमने अलग से बात की थी कि प्री राइटिंग स्टेज होती है, ड्यूरिंग राइटिंग है और पोस्ट राइटिंग। अच्छा अब जो है हम इंडिविजुअली अलग से देखते हैं कि राइटिंग के लिए स्टेप्स क्या होंगे। जी स्टेप नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, collecting ideas, we are drafting a list and we are drafting an outline। याद आ गया लिस्टिंग। अब यही लिस्टिंग माइंड मैपिंग से भी हो सकती है, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज से हो सकती है। एंड आउटलाइन, अच्छा सर ये लिस्ट और आउटलाइन तो हमें कहाँ बनानी है, दिमाग में। तो फिर हम आईकैप को क्या शो करेंगे, 10 नंबर की ब्रेनस्टॉर्मिंग आ रही है तो आईकैप में एक और स्ट्रैटेजी होगी जो कि हमने अप्लाई करनी है, दैट इज कॉल्ड, या तो एफिनिटी डायग्राम बनाएंगे और फिश बोन डायग्राम। ओके सो लिस्टिंग और आउटलाइन अपने दिमाग में बनानी है, उसमें से डेटा लेकर अगर आप एफिनिटी बेस्ड, यू हैव द चॉइस इन एसे, you have two article choices are given, either you will go for affinity based article or you will go for fishbone based writing, ठीक है, you have the choice। अब चॉइस में तुमने जिस चीज़ की प्लानिंग या प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई है, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस एफिनिटी डायग्राम मोर यू विल गो फॉर एफिनिटी, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस फिशबोन डायग्राम मोर यू विल गो फॉर फिशबोन। फिशबोन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड होती है और जो एफिनिटी होता है वो इसी तरह होता है जो अभी हमने आउटलाइन देखा, थीम वाइज होता है, ठीक है। So first step is steps in writing, we have the brainstorming step, या इसको तुम दूसरा क्या नाम दे सकते हो, प्री राइटिंग। डन। अब जो इसकी स्टेज नंबर 2 है वो क्या होगा, ड्यूरिंग राइटिंग। और ड्यूरिंग राइटिंग मीन्स एक्चुअली राइटिंग, या उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, ड्राफ्टिंग। यू हैव द डेटा एंड यू हैव ड्राफ्टेड एन आर्टिकल और ऐसे। और मैंने बताया कि आपको ये जिंदगी हमारी यहाँ पर तमाम नहीं हुई, आर्टिकल हमारा पूरा नहीं हुआ, बल्कि नाउ वी हैव टू डू पोस्ट राइटिंग एज वेल। एंड पोस्ट राइटिंग बोले तो रिव्यू एंड रिवाइज और एडिट, edit for language, edit for improvement, edit for task fulfillment, ठीक है। हम ये देखते हैं कि हमारी टास्क पूरी हो रही है, जो ऑब्जेक्टिव मांगा गया था, डिमांड की गई थी, वो पूरी हो रही है, या जो हमारा हम जो चाह रहे थे क्या वो पूरा हो रहा है। वी वांट टू कन्विंस समबडी, सो आर वी एबल टू कन्विंस समवन, ठीक है। परसुएसिव स्ट्रेटजी लगानी थी, या बैड न्यूज़ दे रहे थे, बुरी खबर दे रहे थे, तो क्या हम इसे बुरी खबर दे पा रहे हैं। सो ये हमने चेक करना होता है दैट इफ वी आर अचीविंग द टास्क। ओके सो 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला काम ब्रेनस्टॉर्मिंग, कलेक्टिंग द डेटा, प्लानिंग, डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल दीज थिंग्स। स्टेप नंबर 2 ड्यूरिंग राइटिंग, ड्यूरिंग राइटिंग इज ड्राफ्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग, एंड पोस्ट राइटिंग इज वी हैव टू रिव्यू एंड एडिट द कंटेंट अकॉर्डिंगली। उसके अंदर कोई अगर फ्लावर्स वगैरह की कमी है तो हम फ्लावर्स डालेंगे, ट्रांजिशनल मार्कर्स डालने हैं, कोई और सेंटेंसेस डालने हैं, कोई आइडियाज़ को लिंक करना है, पैराग्राफ को सेपरेट करना है, कोई सेंटेंस एक्स्ट्रा लिखा हो, वी हैव टू इरेज इट, डिलीट इट, वी कैन डिलीट इट, ठीक है। तो इस तरह से तो ये 3 काम हो गए, 3 स्टेप में हमारी राइटिंग हो जाएगी। हो गई, डन। अभी थके तो नहीं हो, थके तो नहीं ना,
आप भी ओके? ज़बरदस्त। अब हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों की, मुझे आपके थकने की बड़ी फिक्र है ना। वन इज हुक। ये अब हुक क्या होता है? हुक इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। हुक क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। इट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट टू अट्रैक्ट योर रीडर। ये रीडर को कैच करेगा, कैश करेगा, अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स आर्टिकल, और इसको हम कहते हैं हुक स्टेटमेंट। अब ये क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी अ कोटेशन, इट कैन बी अ क्वेश्चन, इट कैन बी सीरीज ऑफ क्वेश्चन, मोर देन वन क्वेश्चन, ठीक है। इट कैन बी अ डेफिनेशन इफ इट्स अ टेक्निकल राइटिंग, it can be a new thought, it can be a big idea, कोई ऐसी बात जो किसी ने सुनी ना हो, बहुत बड़ी बात। ये न्यूज़ वाले होते हैं, न्यूज़ वाले ये बड़ी कैची स्टेटमेंट लगाते हैं। न्यूज़पेपर अब तो ख़त्म हो गया रवाज, लेकिन स्टिल अब वो यूट्यूब के ऊपर टैग लाइन लगाई हुई होती है, और आप देखते हो और कहते हो इसमें कुछ बिग 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 मिलने वाला है, वो मिलता भी नहीं। सो दैट्स द न्यू थॉट और द बिग आइडिया फर्स्ट, ठीक है। और द बैकग्राउंड, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। सो ये आपका आ गया हुक स्टेटमेंट, समझ गए। आइदर यू विल राइट कोट, कोटेशन अगर तुम्हें याद हो तो वो भी तुम लगा सकते हो। तुमने कभी पढ़े भी होंगे कोई आर्टिकल जो कोटेशन से स्टार्ट हो रहे होते हैं, या फिर एंड कोटेशन पर हो रहे होते हैं। सो कोटेशन हो सकता है, इट कैन बी अ क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, और इट कैन बी सीरीज ऑफ क्वेश्चन 1 2 3। हैव यू एवर हर्ड अबाउट, हैव यू सीन दिस, ठीक है, डू यू एवर नो, इस तरह। सो मोर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एंड देन यू हैव डेफिनेशन, अगर कोई टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल आइटम है, टेक्निकल टर्म है। इट कैन बी अ न्यू थॉट और द बिग आइडिया और समथिंग टू बैंग, ठीक है। तो कुछ आपने ऐसी बात करनी है जिससे यू आर गोइंग टू हुक और कैच द रीडर्स अटेंशन। डन? हुक समझ में आ गया एवरीवन? ऑनलाइन वाले आपको भी आ गया समझ में? हुक जी, राइटिंग आर्गुमेंटेटिव होगी, लेकिन फिशबोन को मैं कहता हूँ ज़्यादा ये कॉज इफेक्ट बेस्ड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है, और जो हमारा एफिनिटी बेस्ड है वो ज़्यादा जो है ना वो आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है, प्योर आर्गुमेंटेड है, जिसमें आर्ग्यू करते हैं, किसी को किसी बात पर तैयार करते हैं, कन्विंस करते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं। सिंपल आइडिया भी हो सकता है, लेकिन आई केयर जो है वो आपको आर्ग्यू ही आपको करना सिखा रहा है कि आपने परसुएड किस तरह करना है, कन्विंस किस तरह करना है, अपनी बात किस तरह से किसी को समझानी है। तो वो हम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग और टाइप ऑफ राइटिंग को स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हुक। हुक कहाँ पर आएगा? हुक इज इन द इंट्रोडक्शन। हुक इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द एसे, ठीक है। अब दूसरा जो सेंटेंस है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, जो थीसिस स्टेटमेंट होता है ये इट गाइड्स द रीडर अबाउट द टॉपिक एंड इट बिकम्स द रूट मैप फॉर द राइटर। राइटर को भी पता चलता है कि मैंने कहाँ जाना है। जो बॉडी पैराग्राफ में चीज आ रही है उसका तारुफ, उसकी बात एक्चुअली वो थीसिस स्टेटमेंट में आती है। एंड थीसिस स्टेटमेंट इज वन सेंटेंस, नॉट मोर देन वन। इट इज वन सेंटेंस और वन स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। एंड बट और नॉट फॉर सो येट तो हो सकते हैं, लेकिन फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस आ गया तो इट्स ब्रोकन, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट इज ऑफ ओनली वन सेंटेंस एंड नॉट मोर देन दैट, ठीक है। समझ में आ गई? So you can have connectors, comma, semicolon, or and, but, or, nor, for, so, and yet. Conjunctions वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। So thesis statement introduces you to the whole article. नहीं, मुस्फिरा topics will be different.
एंड यू विल हैव द चॉइस। इसीलिए ऐसे राइटिंग के अंदर चॉइस है हमारे पास, ठीक है। ऐसे में हमारे पास चॉइस है कि कौन सा एक टॉपिक हमें करना है। अगर हम एफिनिटी बेस्ड आर्टिकल को चूज़ करेंगे तो उस पर लिखेंगे, और अगर हम फिश बोन को चूज़ करेंगे तो उस पर लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस का एक फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला खुद ही बनाया हमने। टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल प्लस टॉपिक आइडियाज इज इक्वल टू थीसिस स्टेटमेंट। टाइटल ऑफ द आर्टिकल, मदर इज अ लविंग क्रिएचर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज द टाइटल, प्लस मदर इज केयरिंग एंड हम्बल एंड लविंग पर्सन। इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे एक जुमले के अंदर तो आपका थीसिस तैयार हो गया, ठीक है। स्मार्टफोन इज समथिंग नेसेसरी और द पार्ट ऑफ आर सेल्व्स, राइट। तो ये इसका एक टाइटल हो गया, नेसेसरी। और दूसरे इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन जो हमने डिस्कस करने। तो फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्टफोन कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, थीसिस स्टेटमेंट बन गया। इज इट क्लियर, समझ गए ना। टाइटल को मेन टॉपिक से मिला देंगे तो हमारा थीसिस बन गया। जी डिपेंड करता है वो तो क्या आर्टिकल है, बिल्कुल वो तो डिपेंडिंग अपॉन के टॉपिक क्या मिला है उस तरीके से, तो वो भी एक एग्जाम्पल सेंटेंस तो आ सकता है, ठीक है। अब बताओ, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो रहा है और हम समझ रहे हैं, तो दो चीज़ें होंगी जिससे इंट्रोडक्शन बनेगा। नंबर 1 हुक स्टेटमेंट एंड नंबर 2 थीसिस स्टेटमेंट। सही है, आज इंशाल्लाह हमारा ऐसे के स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। और फिर जब जब तुम रीडिंग करोगे, जब जब तुम ब्लॉग पढ़ते हो, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ोगे, CNN से कोई आर्टिकल पढ़ोगे, AI से कोई आर्टिकल निकाल के पढ़ोगे, तो उसमें देखना कि थीसिस कहाँ लिखा हुआ है, हुक कहाँ पर है, और आगे मैं जो बता रहा हूँ टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या क्या यूज हुए हैं। जब तुम इसको इस तरह से पढ़ोगे ना, अब ये क्रिटिकल रीडिंग बनेगी, ये अब इट विल बी बियॉन्ड रीडिंग एंड यू विल बी ऑब्जर्विंग पैटर्न्स इन द रीडिंग कि ये आर्टिकल राइटर किस तरह लिख रहा है, तो ये एनालिटिकल स्टेज होगी। और यहाँ पर क्या होता है कि जब तुम इसको इस तरह पढ़ोगे, एक आर्टिकल को केयरफुली पढ़ोगे, तो फिर ये होगा कि यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग, एंड तुम्हारी राइटिंग के अंदर वो रीडिंग रिफ्लेक्ट करेगी। और तुम्हारी राइटिंग की जो मिस्टेक्स है ना, एंड्स एंड बट्स की, यानी कॉन्जंक्शन की और इंटरजेक्शन वगैरह की और प्रेपोजिशन की, तो वो ऑटोमेटिक आर्टिकल्स की वो मिस्टेक्स भी आउट होना शुरू होंगी। बट डिमांड क्या है, यू हैव टू रीड देन रीड एंड देन रीड एंड देन रीड। 5 रीडिंग करके एक आर्टिकल लिखो। और कल को मैं तुम्हें कहूँगा, बल्कि आज से कहूँगा कि राइटिंग करो, एक पैराग्राफ लिखो, या फेसबुक पे ही लिखना शुरू कर दो, या जहाँ कोई प्लेटफॉर्म है, कोई सोशल प्लेटफॉर्म है, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है, स्टार्ट राइटिंग। और जब तुम एक एक पैराग्राफ लिखोगे तो एक पैराग्राफ को लिखने से पहले यू शुड रीड 5 आर्टिकल्स। तुमने एक टॉपिक लिया, क्या कहेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI के ऊपर तुम फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो, सो यू विल रीड 5 आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल पढ़े तो कितना डाटा आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गई ना, मुख्तलिफ टाइप की आ गई, कुछ तुमने पॉइंट्स भी नोट कर ली, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, एंड यू हैव गॉट द पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड आफ्टर रीडिंग 5 आर्टिकल्स यू विल राइट 1 पैराग्राफ। सोचो, तो वो रिच होगा ना, और उसमें कुछ ना कुछ स्टाइल भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगी। लेकिन रीडिंग एंड देन रीडिंग इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू इंप्रूव। सही है। अब हमने बात कर ली हुक की, और हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बात कर ली थीसिस की। अब हम आ गए बॉडी पैराग्राफ पर, और बॉडी पैराग्राफ के अंदर नंबर 1 क्या बताया था, टॉपिक सेंटेंस। अब ये टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ये जो टाइटल के बाद आपने मेन थीम लिखा था ना अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, वो टॉपिक आइडिया कहाँ आ जाएगा, टॉपिक सेंटेंस में आ जाएगा। समझ आ रहा है। थीसिस के अंदर टाइटल के बाद जो टॉपिक्स आइडियाज आ रहे थे, वो टॉपिक आइडिया विल कम इन द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द बॉडी पैराग्राफ। और इसके बाद आपके पास आ रहा है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट की मिसाल पिलर की सी है कि ये छत है और उस छत के नीचे कितने पिलर आमतौर पर होंगे, 4 होते हैं ना। तो हम यहाँ 4 नहीं कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं 3 पिलर होने चाहिए, ठीक है। तो 3 सपोर्ट होगी तो आपका बॉडी पैराग्राफ, आपका टॉपिक जो है ना उसको सपोर्ट मिलेगा।
अगर सपोर्ट नहीं होगी तो कोई मानेगा नहीं कि जो बात आप कह रहे हो सही है। ये जो टॉपिक सेंटेंस होता है इसकी मिसाल इज लाइक अ क्लेम। टॉपिक सेंटेंस इज लाइक अ क्लेम स्टेटमेंट। ये क्लेम है, तुम कह रहे हो मदर इज अ लविंग क्रिएचर, लविंग मदर इज सो मच लविंग एंड केयरिंग पर्सन फॉर एग्जाम्पल इन माई लाइफ। तो अब तुम उसको लविंग भी कह रहे हो, केयरिंग, इट्स लाइक अ क्लेम, तुम ये क्लेम कर रहे हो। अब जो बॉडी की सपोर्ट सेंटेंसेस है ना वो उस क्लेम को प्रूव करेंगे, और जो तुम्हारा आखिरी जुमला होगा वो प्रूव करेगा हैंस प्रूव्ड x is congruent to y, hence proved that mother is वाकई में loving creature, understood? तो ये हमारा क्लेम स्टेटमेंट होता है, टॉपिक सेंटेंस है, और जितनी भी सपोर्ट आ रही है वो उसी सेंटेंस को सपोर्ट करती है जो टॉपिक सेंटेंस वाली हमने बात की, और बाय द एंड क्या है कि हम उसको प्रूव कर देते हैं, कंक्लूजन स्टेटमेंट डाल देते हैं, उससे बात प्रूव हो जाती है। ठीक है, अगर तुम कह रहे थे कि करप्शन है या टेररिज्म एक्टिविटीज़ है या क्या स्नैचिंग है, तो एक बात है कि करना कि ये है, एक बात है कि उसको प्रूव भी करना। तो अब तुमने अपनी राइटिंग के अंदर यू हैव टू प्रूव वॉट एवर यू आर सेइंग। इफ यू आर सेइंग इट्स अ सिटी ऑफ लाइट्स देन यू हैव टू प्रूव इट। सपोर्टिंग सेंटेंस से तुम प्रूव करोगे। तुम कह रहे हो मिस्टर तला इज महान टीचर, वाह क्या टीचर है, सपोज ठीक है, ज़रूरी नहीं। अब अगर तुम ये क्लेम करते हो तो अब तुम्हें उसको प्रूव करना है, उसका रेफरेंस देना है, उसका एग्जाम्पल देना है, उसकी वजह बयान करनी है, देन कोई मानेगा ना तुम्हारी बात। सो यू हैव टू हैव द कन्विंसिंग एटीट्यूड, और यही आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी पैराग्राफ के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब टॉपिक सेंटेंस भी आ गया, सपोर्टिंग सेंटेंस भी आ गए। अब कंक्लूजन की बात कर लें। कंक्लूजन के अंदर क्या आ रहा है? समरी आ रही है। अब हमने कहा था कि मदर इज अ लविंग क्रिएचर एंड शी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ऑल, तो वो हमारा थीसिस स्टेटमेंट था। थीसिस स्टेटमेंट को हम अब रिपीट कर देंगे। देयरफॉर इट इज वेरी मच, ऐसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मिसाल के तौर पर, एविडेंट दैट विदाउट, बल्कि दैट इन द एब्सेंस ऑफ a mother, a person cannot survive smoothly या easily या comfortably। ठीक है, तो इस तरह से आप एक जो क्लेम कर रहे थे ऊपर, उसी को आपने रिपीट कर दिया थीसिस स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, डन। तो ये होता है कि समरी राइटिंग हो गई, समरी ऑफ द होल आर्टिकल, और वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका, आप तो कॉपी बैग में रख रहे हो, क्यों भाई, छुट्टी हो गई, थक गए? सही है। सो इन इंट्रोडक्शन वी हैव गॉट द हुक, इंट्रोडक्शन वी हैव गॉट द थीसिस स्टेटमेंट, then the body paragraph we have got the topic sentence, and we have supporting sentence 1 2 3, example sentence, reason, मुख्तलिफ बातें आ गई, and in the conclusion we have summary। अच्छा, अब एक चीज़ और बतानी है सर, हमें तो लगा था कि पूरा हो गया, नहीं। ये देखो, थीसिस स्टेटमेंट वर्सेस टॉपिक सेंटेंस, ये बात किसी के ज़हन में आई थी? सर ये अगर थीसिस स्टेटमेंट लिख दे तो टॉपिक सेंटेंस की क्या जरूरत है, क्या ख्याल है? समझ में आ रहा है? अब बताओ कि थीसिस कहाँ लिखते थे और टॉपिक सेंटेंस कहाँ लिखते हैं? यस, हेलो हेलो। अच्छा, अब देखो, थीसिस लिख रहे हो इंट्रो में और टॉपिक सेंटेंस लिख रहे हो बॉडी पैराग्राफ में। तो थीसिस स्टेटमेंट जो है उसमें होता ये है कि हम पूरे ऐसे का तारुफ कराते हैं, कंप्लीट ऐसे को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, कवर्स द होल ऐसे। एक्सक्यूज मी, हमारी बात गायब हो गई, सही है। लेकिन आपको याद आ रहा है थीसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम थीसिस के अंदर पूरे ऐसे को सामने रखकर उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पूरे ऐसे के लिए। अब आगे अगर तुम 2 बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हो या 3 बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हो, ये डिपेंड करता है। हेलो, सुभान अल्लाह, वेरी गुड।
ठीक है, तो अब टॉपिक सेंटेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी पैराग्राफ के लिए, इट फोकसेस ऑन बॉडी पैराग्राफ ओनली। अब अगर तुमने दो बॉडी पैराग्राफ बनाए, एक जो है मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और एक मदर के केयरिंग नेचर के ऊपर, तो ये दोनों अलग अलग बॉडी पैराग्राफ होंगे, और एक में तुम्हारा टॉपिक सेंटेंस बात करेगा केयरिंग एंड लविंग का और दूसरे में बात करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर का। और जबकि थीसिस स्टेटमेंट में क्या होगा, ये पूरे ऐसे के अंदर लविंग, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर, इस सारी चीज़ों को कवर करेगा। अच्छी भी हो, समझी भी हो, फहीम तुम, अंडरस्टूड, समझ गए? अच्छा, वाह, इतनी बात तो ये हो गई कि हमें कुछ कुछ ऐसे लिखने के बारे में पता चल गया। अब हम जब रीडिंग करेंगे तो हम रीडिंग में ढूंढेंगे थीसिस स्टेटमेंट, हम रीडिंग में ढूंढेंगे हुक स्टेटमेंट, हम रीडिंग में टॉपिक सेंटेंस ढूंढेंगे, हम रीडिंग में सपोर्ट ढूंढेंगे और कंक्लूजन ढूंढेंगे। सही है, और उसको गौर से हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह लिख रहा है। एक बात और बता देते चलो, ठीक है, हिम्मत है? नहीं है, आज बोल ही दिया, हाँ, वरना पहली क्लास में लोग बोलते नहीं है। अल्लाह, देखो पढ़ाने वाले को तो पढ़ाने का मजा आता है, कल को तुम भी कहीं लेक्चर दोगे ना, तुम एंजॉय करो, लेकिन जो सामने वाला होता है ना वो थकता है। बहरहाल थोड़ी सी बात करते हैं इंशाल्लाह। अब तो सीए में आ गया, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्या ख्याल है? पढ़ने की नियत करके आए हो ना? ठीक है, अब तो इंशाल्लाह स्टडी करनी है, लेक्चर्स लेने हैं, लाइव भी लेना है, ऑनलाइन भी लेना है, पढ़ना है, समझना है, एआई से भी पूछना है, प्रैक्टिस करनी है। ओ माय गॉड, ठीक है ना? फिर ज़्यादा माल आएगा ना, ठीक है, रिजल्ट भी आएगा इंशाल्लाह, अच्छी पोजीशन भी आएगी, डेजिग्नेशन भी आएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करके इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। ट्रांजिशन बहुत अहम है कि फॉर एग्जांपल फर्स्टली, ये मैंने इस तरह लिखा है, फॉर एग्जांपल फर्स्टली, ठीक है, या सेकेंडली या थर्डली, ठीक है, फर्स्टली करके तुमने कोई बात की, फिर सेकेंडली करके कोई बात की, फिर थर्डली करके कोई बात की, ठीक है, ये क्या होते हैं? ट्रांजिशनल मार्कर कहते हैं, ट्रांजिशंस कहते हैं, ठीक है। या तुम कहते हो देयरफॉर, अगर कोई बात पहले चल रही थी, देयरफॉर आ गया, या कोई बात, किसी बात का एडिशन है तो यू कैन से फॉर एग्जांपल फर्दर मोर, सुना होगा ना, इसके भी मार्क्स होंगे, ये यूज जरूर करना है, इससे कनेक्टिविटी नजर आती है कि तुम्हारा जो कंटेंट है वो कोहेरेंट है, लॉजिकली कनेक्टेड है। इन एडिशन टू इट करके भी कोई बात करते हो, ठीक है, तो इस तरह से इन कंक्लूजन। अब अगर वैसे तो हम कहते हैं कि आईकैप के अंदर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, ह्यूमंस ही उसको चेक करते होंगे ऐसे को, लेकिन सपोज करें कि अगर सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है, अगर ऐसे को कोई सॉफ्टवेयर, कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशन चेक कर रही है, तो वो भी इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और कैच करता है, ठीक है, कि आपने इस तरह की ट्रांजिशनल मार्कर्स यूज़ किए हैं, आपकी लैंग्वेज सही है, टेंस का रिदम है, अगर तुम पास्ट टेंस पे लिख रहे हो तो पास्ट टेंस जो है वो कनेक्ट हो रहा है, या जो वोकैबुलरी चॉइसेस हैं वो सही है, आर्टिकल जो है वो एक टॉपिक पर ही है, या ऐसा तो नहीं कि दो तीन टॉपिक को तुमने मिक्स किया हुआ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो रही होती हैं, तो इस पर भी आपके मार्क्स प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो इस तरह से भी हमने इंशाल्लाह अपनी राइटिंग के अंदर करना होगा। अभी एक हम आर्टिकल पढ़ के उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, कर लें? ज़बरदस्त, कर लेना, नहीं करें? अच्छा चलिए, रेज हैंड, रेज योर हैंड्स। कौन कौन कह रहे हैं कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होनी चाहिए? एक बच्चे की तो मोटिवेशन छत से लगी हुई है, वो तो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट, आज ही पास कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं इंशाल्लाह मोटिवेटेड रहना, ठीक है। तो बहरहाल हम इंशाल्लाह ग्रुप में भी आपको अभी नहीं लेकिन ऐड कर लेंगे, बना लेंगे ग्रुप इंशाल्लाह। और ये है कि आप लोगों ने आज से पहला काम तो ये करना है, रीडिंग स्टार्ट करनी। अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, वील कंटिन्यू टू राइटिंग एंड वील रीड मोर यू नो अबाउट राइटिंग एंड प्लानिंग। बुक से भी हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, और रीडिंग अगर तुम करते रहोगे ना, स्टार्ट कर दोगे आज से, स्टार्ट रीडिंग, जो भी आर्टिकल तुम्हें मिल रहा है बस पढ़ो। वैसे हमारी आईकैप की जो थीम्स होती हैं वो एजुकेशन की थीम है, इस पर आर्टिकल्स होते हैं। एनवायरनमेंट की थीम है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, पोल्यूशन से मुतालिक हो या एनवायरमेंटल चेंजेस हो, ये है। करंट अफेयर्स है, आईटी है, ठीक है, यूथ है,
एजुकेशन है, तो ये वाले ICAP के जो है वो थीम्स होती हैं, इनसे मुताल्लिक आर्टिकल्स को पढ़ो एंड गो थ्रू देम एंड प्रैक्टिस एंड प्लान टू राइट। ठीक है, आज तो जल्दी ख़त्म करना वरना एंड जल्दी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसी पे एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह वील कंटिन्यू। अल्लाह लेट्स सी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।